Welcome to PyMates. In this video, we'll be continuing how to calculate the sum of the first n terms of an AP. This video is continued from part 3A. So make sure you watch that video first and then continue with this lecture 3B. We'll be practicing few questions from the exercise 5.3 of your NCERT. The rest of the questions which will not be discussed in this video, you can practice them from your book, and then if you feel you have any doubt, you can comment below the question number. So let's begin. So our first question is, the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? So the first term is given to us as 17 and the last term as 350. The common difference is 9. And we have to find the number of terms and their sum. Number of terms means we have to calculate the value of n and we have to calculate their sum, that means Sn. So first we'll find out n and then we'll find out Sn for that n. So let us solve, then you will understand it. The first term is 17, so we can write A equals 17. The last term is 350, so L is 350 and the common difference is 9, so D is 9. अब हमें बोला है लास्ट टर्म 350 है, तो लास्ट टर्म जब हमें n नहीं गिवन होता तो उसको हम an ही कंसिडर कर लेते हैं. So we can also write this an equals L only. तो पहले हम an में first we'll find out the value of n using the general form an equals a plus n minus 1 into d. So on using the general form and solving it, we get n as 38. That means there are total 38 terms in this AP. So that means the last term is the 38th term. N is 38. So we have to calculate the sum of 38 terms. So now we'll calculate S38. For that, we'll use the formula Sn equals n by 2 A plus L. As we know the first term also and the last term also. So on substituting the values, as the first term is 17, so A is 17, the last term is 350 and we have to calculate the sum of 38 terms. So S 38 and here N is 38. So when we solve it, we get the sum as 6973. So therefore the sum of 38 term is 6973. Let's start with the next question. If the sum of first 7 terms of an AP is 49, and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. तो हमको जो क्वेश्चन में गिवन है और जो फाइंड आउट करना है पहले वो लिख लेते हैं. वी आर गिवन द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो सम को हम Sn से डिनोट करते हैं. अब 7 टर्म्स की बात करिए तो हम S7 से डिनोट करेंगे. सिमिलरली 17 टर्म्स के लिए हम S17 से डिनोट करेंगे. अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट Sn. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S7 एंड S17 के लिए अब हमें Sn का जनरल फॉर्मूला जो पता है, Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into 2. अब हम इस फॉर्मूला की हेल्प से S7 एंड S17 दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे. सो वील गेट, अब जब हम S7 एंड S17 को Sn का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे तो we'll get two equations, a plus 3d equals 7 and a plus 8d equals 7. And in दोनों equations को you know how to solve using the elimination method. So when you will solve these two equations, तो आपको a और d की values मिल जाएंगी. So after solving you get d as 2, that is the common difference is 2 and the first term a is 1. अब हमको Sn कैलकुलेट करना था तो Sn का जनरल फॉर्मूला यूज करके उसमें हम a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे and we'll calculate the sum of n terms. So Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. When you substitute the value of a as 1 and d as 2, you get n by 2 into 2 plus 2n minus 2. तो यहाँ से हम 2 और minus 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. So we'll get this term and after this यहाँ से हम 2 और 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. n into n will become n square. जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. We have started this. So Sn equals n square. So we can say therefore the sum of n terms is n square. Let's proceed to the next question. Question number 3 is, show that A1, A2 up to AN and up to so on form an AP
where an is given by 3 plus 4n. उन्होंने हमें एक जनरल फॉर्म दी हुई है an की, कुछ हमें जैसे जनरल फॉर्म का फॉर्मूला पता था उसका ही उन्होंने n की टर्म्स में एक जनरलाइज्ड फॉर्म दे दी। जैसे एज यू कैन सी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया है, इसमें यू कैन सी Sn n स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अब सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स कुछ भी निकालना हो तो आप डायरेक्टली S10 S20 यहीं पर पुट कर सकते हो। यू विल राइट इट एज 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, जितने भी टर्म्स का सम निकालना होगा। तो ये जनरलाइज्ड वर्जन हो गया। इस पूरे फॉर्मूला से हमने एक सिंपल फॉर्म निकाल ली Sn की। सेम इस क्वेश्चन में हमें थर्ड क्वेश्चन में an को जनरलाइज्ड फॉर्म में गिवन है, तो इससे हमको शो करना है कि इससे जो टर्म्स निकलेंगी an इक्वल्स 3 प्लस 4n से n की वैल्यू जब मैं 1 2 3 4 पुट करूंगी तो वो टर्म्स हमारी AP में आएंगी। AP में कब होती हैं टर्म्स? अब मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था व्हेन डज अ सीक्वेंस बिकम एन AP, एक ये स्लाइड थी। इफ यू want you can watch it again, and वहाँ पर आप जब देखोगे तो हमने एक स्लाइड में ये किया था when does a sequence form an AP। तो वो कैसे पता चलता था? जब कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम आता था। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, we'll calculate at least 3 terms और उससे हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर सेम आ रहा है तो yes they form an AP, नहीं आ रहा तो no। One more thing is given to us, show that, उन्होंने लिखा है show that they form an AP, मतलब ये AP तो फॉर्म कर रही है, बस हमें इसको शो करके दिखाना है। That means कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो हमें ये दिखाना है कि सेम आ रहा है। So from here we can calculate A1 which comes out to be 7. Similarly we'll calculate A2, A3 and A4, at least 3 to 4 terms. So we have got our 4 terms, A1 as 7, A2 as 11, A3 as 15 and A4 as 19. Now we have to check कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं आता। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे? कोई भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। लेट अस राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एन AP फर्स्ट। तो अब हमारी टर्म्स कुछ ऐसे आ रही हैं, वी कैन मार्क देम एज A1, A2, A3 एंड A4। तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। So as we can see, किसी भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने पे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 हमारी वैल्यूज सेम आ रही हैं, 4 आ रहा है हमेशा। दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज 4 ऑलवेज। So we can say it forms an AP with common difference 4 and the first term as 7. Let's do the next question. The next question is find the sum of first 15 multiples of 8. अब ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 में भी किया है, जहाँ पर हमने 7 के मल्टीपल्स कैलकुलेट किए थे। 3 डिजिट नंबर्स कितने 7 से डिविजिबल होते हैं, ये क्वेश्चन था। तो सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बोला है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स लेने हैं हमें 8 के। तो मल्टीपल्स हमें पता है उस नंबर से जो बड़े होते हैं या वही नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल वे में यू कैन अंडरस्टैंड कि जो नंबर्स उसके टेबल में आते हैं। सो वील राइट देम इन द फॉर्म ऑफ एन AP। सारे मल्टीपल्स नहीं लिखेंगे, हम कुछ लिख लेंगे सो दैट हमारे पास A, D इनकी वैल्यूज आ जाएं और वी कैन कैलकुलेट S15, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स दैट इज S15। सो लेट अस सॉल्व। तो हमारे मल्टीपल्स कुछ इस फॉर्म के होंगे 8, 16, 24, 32 अप टू सो ऑन। तो हमारी AP यही बन गई। अब इससे वी हैव टू फाइंड आउट S15। वी नो Sn इक्वल्स n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, n is 15, तो वी हैव टू कैलकुलेट S15। a is 8 and d is also 8. So when we substitute the values, we get S15 equals 15 by 2 into 2, A is 8 plus 15 minus 1 into D is 8. So on solving, we get S15 as 960. That means the sum of first 15 multiples of 8 is 960. Let's read the question first. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. हमको इस क्वेश्चन में बोला है 700 रुपीज हैं। इस 700 वाले अमाउंट को हमको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें 7 कैश प्राइजेस देने हैं। अभी तक कितना पढ़ा हमने? लेट्स सी नेक्स्ट। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अब उन्होंने हमें एक चीज और बोली है, अगर हर प्राइज हमारा
₹20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अपने पहले वाले प्राइस से 20 कम है। ₹700 टोटल कैश प्राइस है हमारे पास, इन सब का सम, मतलब जितने भी कैश प्राइजेस हैं, ये फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, तो 7 तक हमने प्राइजेस दिए, इनमें टोटल मनी 700 था, इस 700 को ही हमें डिवाइड करना है। बट एक कंडीशन है डिवाइड करने की, कि जो फर्स्ट हमारा पहले वाला प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइस वैल्यू या प्राइस मनी हमारी ₹X है, तो नेक्स्ट वाली उससे 20 कम होगी, तो नेक्स्ट x माइनस 20 होगी। सिमिलरली उससे नेक्स्ट हमारी और 20 कम होगी, मीन्स x माइनस 20 में से 20 और लेस कर दो, सो वील गेट x माइनस 40 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे करके 20 रिड्यूस होती जाएगी। तो अगर हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट में यूज करें, तो हमें यहाँ समझ आ रहा है कि 20 हमेशा रिड्यूस हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारी कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हो जाएगी -20। और यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अनदर वे, हमारी यहाँ पर हमने लेट करी फर्स्ट टर्म x, तो सेकेंड टर्म हमारी x माइनस 20 आई। अब हमें पता है d क्या होता है, a2 माइनस a1, दैट मीन्स x माइनस 20 माइनस x, so when we'll cancel this we'll get d as minus 20, तो we can say common difference हमारा -20 है, और टोटल कैश प्राइस 700 दिया हुआ, दैट मीन्स इन सब का सम हमें 700 गिवन है, और उन्होंने बोला है हर एक कैश प्राइस की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। सो अब हम सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, देन वील सी कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है Sn इक्वल्स n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पर 7 है, तो S7 इक्वल्स n की जगह पर 7 रख दिया, कॉमन डिफरेंस d अभी हमने -20 लिखा, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। So when we solve it, we'll get the value of a as 160. That means, so S7 was given us to be 700. तो सारी values substitute करके solve करके we get a as 160. That means the first term is 160. तो हमको सारे कैश प्राइसेस निकालने थे, a is 160, तो फर्स्ट टर्म हमारी 160 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस हमारा -20 था, द नेक्स्ट प्राइस वाज 20 लेस दैन द प्रीसीडिंग प्राइस, तो इससे 20 कम विल बी 140, 120, तो ऐसे करके हम 7 कैश प्राइजेस लिख देंगे। सो दीज ऑल विल बी आवर 7 कैश प्राइजेस। So I hope you have understood all the 5 questions. If you have any doubt in any of these questions, you can leave the comment below in the comment section, or you can use the mail ID given in the description box to ask your doubts or give your suggestions. You can practice similar questions from the NCERT in exercise 5.3. If you face any doubt in any other question, you can write the exercise number and the question number in the comment section. I will explain that question to you. You can also interact with me on Facebook and Instagram. If you want any other chapter to be taught by us, you can comment below the name of the chapter that you want us to teach, that you have not understood. Subscribe to the channel for more content and more videos.